Thank you for joining us on This Is Exclusive. It's 7 p.m. coming to you with three big stories tonight. Can you believe it? In a country like India, where the courts like to give moral lectures to citizens every single day, after 48 years, this man has gained freedom. He's been released at the age of 104. Coming to you with that big story that should wake up our justice delivery systems. Here are the headlines on This Is Exclusive tonight. "104-year-old man finally walks free after nearly 5 decades behind bars. The long delay sparks serious questions about India's justice system. A minor raped, left to die in Bihar's Muzaffarpur. She was kept waiting outside the hospital in an ambulance for 4 to 6 hours. Nobody came forward to give her medical attention. Zepto faces FDA action over safety violations. Quick commerce entities under scanner, multiple lapses reported. Heavy rains across the northeast. Assam, Sikkim, Arunachal worst affected. Rescue operations underway. Over 30 dead. Over 3 million impacted. The surrender of Red Terror continues. Maoists carrying rewards surrender in front of security forces. We're starting this edition of This Is Exclusive, ladies and gentlemen, to bring you a story, an exclusive input. In a world where time waits for no one, and there are stories that defy the very essence of time, and this is one such story of Lakhan Saroj, a man whose life was stolen by the very system meant to protect him. Lakhan's journey took a tragic turn in 1977 when he was wrongfully accused of murder during a village clash. 1977. What followed was a relentless battle against a justice system that failed him at every turn. For 48 long years, Lakhan has languished in prison, ladies and gentlemen, in India. 48 years wrongfully, and his innocence overshadowed by bureaucracy and indifference. He missed the laughter of his children, the milestones of his grandchildren, and the simple joys of everyday life. But even as the world moved on, Lakhan never gave up. His unwavering faith in truth and justice kept him going, even when hope seemed distant. Today at 104, Lakhan Saroj stands as a testament to resilience, a reminder that the fight for justice is not just a legal battle, but a deeply human one. Take a look. कितने साल रहे जेल में? साहब 5 साल नैनी सेंटर में रही, तो फिर जीवन कारा होगा। फिर हमें हाई कोर्ट बेल की है, फिर छोड़ गए। फिर लड़ते रहे साहब। उम्र कितनी हो गई? उम्र साहब 3 साल। 103 साल। हाँ साहब। क्या हुआ था? कौन सा घटनाक्रम, किससे झगड़ा हो गया था जब आपको गिरफ्तारी? साहब हमारे यह रहा है, हमारे चाची को मारे रहे, चंदा, प्रभु, नोखई, ये चारों मारे रहे चाची के, देशराज महतारी के। तो फिर कलेसर, देशराज, मलेसर, कल्लू, तो फिर अपन नहीं किए, फिर अपन जो है अपन झगड़ा मचा दिए। जेल में कुल कितना साल काट दिए जीवन का? कितना, कौन उम्र में जेल गए थे? अरे साहब बहुत हो गए। अगर साहब न मांगते तो रोगा जी को स्वामी का, तो हम कहा जाए कि कई साल का अपना उधार ले आओ, तो उधार ले आओ, तो देखें का और नैनी सेंटर हुआ यहाँ को स्वामी भेज और दीवानदी मार के बेल मिल गई। इतना साल जीवन का जेल में गुजार दिए। हाँ, अब पीछे देखते हो किससे शिकायत है आपको? हाँ कितनी शिकायत है? किससे शिकायत है? हाँ अब उन्हें शिकायत, जब हम सो रही नहीं तो कहीं लाठी चल गए, तो हमारे बेटो मेहरा जगाई, तो उठ के साहब देखा दुआरे केवाड़ खोल के, तो सब खून खून खर्चा रहा, केवाड़ बंद के भीतर घुस गए कि हम लोग ने फंसा दिए। पेपर घुस कर नहीं निकला, फिर साहब
परफ्यूम अपन मारी, फिर 4 रोज बाद लगी दवाई करा, फिर अस्पताल में मर गया। ये अच्छा जितने लोगों से झगड़ा हुआ था उनमें से कोई बचा है कि सबका देहांत हो गया? और साहब जो जिससे झगड़ा हुआ है नोखई बचा है बस, उन्हें भाई रहा है, चंदा मर गया, राजा मर गया, प्रभु मर गया और नोखई भी बचा है। तो कुल 43 साल पहले घटना है, 50 साल कितने साल होगा? हाँ हीरा अवे करे साहब, 43 साल तो अवे करे, 48 साल लाड़ा, ये 43 साल उम्र है, नैनी में रही नहीं, और नैनी फिर हाई कोर्ट बिल कीन है, फिर लड़ रही, और फिर तरीक नहीं जान पावा, तो फिर औरत गया, फिर जब चैमट जेल में गई 6 महीना एमर रही, फिर ये 20 तारीख को छूट है। अच्छा जितना दिन रहे जेल में का करे, जेल में का करत रहो जेल में? साहब भर्ती कह रहे हैं, फिर दूध मिले, सेब मिले, अनार मिले, और सब मिलता रहा है। इतना लंबा समय जेल में काट दियो, जुल्म करे ना रहो, का सोचत हो? जेल से बाहर आए हो, का सोचत हो? अब साहब यार जितनी उम्र रही जेल में बिता गया है, अब समझ ले कमाऊ में भी पैसा कमा लिया, अब बैठे बैठे कलहरी थी। अब जो सरकार जितना बेगुनाह की है हमारे, ये बात बताओ, बोलो जितना उम्र रहा जेल में कट गवा पड़ गया साहब, तो जो काट गया, आप कहा है बैठे पहले हुए कमाई ले कुछ खाए का, आपको कमाई लायक नहीं है, बैठे बैठे। कैसे शिकायत करी हो, केकर शिकायत मनी हो जेल का उतना उम्र कट गया? हाँ अब साहब समझ ले, आपको जो है ये कहा अधीक्षक साहब जो ना, वो बेचारे बहुत मदद हैं, अधीक्षक साहब, जेहरा साहब, दरोगा क्या साहब। करत रहो जेल में, का करत रहो, काम क्या करत रहो जेल में? जेल अस्पताल भर्ती रही, सुई लागे रही, सुई लागे रुको चढ़े अस्पताल में, फिर 6 महीने अस्पताल में नहीं हो जाता, तब बेल हो गए, तब फिर नहीं ये है कि तब निकला। जेल में का मुश्किल आवत रहे, का मुश्किल आवत रहे जेल में? जेल साहब कुछ नहीं यार, 40 साल गुजार दियो जेल में, कितना समय गुजारे जेल में? अरे साहब बहुत गुजार दी ना, बहुत गुजार दिया। इस समय 48 साल हाई कोर्ट में डाला, और 5 साल हुआ कि जीवन काल से बोल दी, तो हाई कोर्ट से बेल कर अपील की ना, तो हुआ छीड़ अच्छा, गए। न्याय कोर्ट से का अपील करियो, सरकार से का अपील करियो, जो तोरी संग गुजरा है, जो हुआ आपके संग, ऐसा किसी और के साथ ना हो, इतना बड़ा जीवन का समय बर्बाद हो गया, अपील का करियो जन सरकार? अब साहब सरकार है उसको जो है ना, अब उन्हें हमको दे, हमारे नजायज तुम गुनाहगार काटा जेल, आप साहब हुई दे। जब जेल में रहो तो घर में काका हुई गवा, बाल परिवार काका के रहे, परिवार में कौन कौन है तोरी? अब परिवार में समझ ले जो कि नहीं, वो मार गया, अय्यट कालता था, मलेसर मार, कलेसर मार गया, और केवल देश राज वो खाटिया कालता था, उन्हें झगड़ा कहीं नहीं, उन्हें कमाता के मारे रहे। तोरी परिवार में कौन कौन है? परिवार में कौन कौन शादी ब्याह भय रहा? हमारे तो बाप जो कहीं तो भाई है, और समझ फिर ये बेटू है, 5 बिटियाँ हैं हमारे पास, फिर सबका साहब शादी कर दिया। सबका शादी हुई गा? हाँ। बेटी पतो सब ठीक है बे? हाँ अब सब ठीक है, जब हुआ छूट के आई ना, तो ये मेरे गरीब दुखी है कि साहब कर दिया। बीवी का, पत्नी का स्थिति तबियत? सब पत्नी खत्म हो गया 21 साल। 21 साल पहले, तब जेल में रहे तुम? हाँ हाँ जेल में थे तब आप? जेल में थे? ये निकल आ रहा नहीं, अब वो खत्म हो गए, फिर बिटिया खमई शादी की है, ये थी आई सब काम महीन की, 3 बिटिया का, 2 काट आ रही है, अब 3 महीन की है। अब परिवार में कौन कौन क्या करते, परिवार के बच्चे सब? परिवार बच्चे अपने किसान करते, जो बच्चे हैं उनके बेटो बटुआ वही कर थे, हमारे बेटुआ जो है वो काम धाम कर थे, तो वही सब खाए अपन न चोरी न चमारी, अपन 3 जून 1 जून से ही। अब कितना साल रहे जेल में, ये तो थोड़ा समझाओ हमका। कोर्ट में केस चला, 48 साल केस चला, कितना साल आप रहे कोर्ट में, जेल में? 5 साल तो नैनी सेंटर में ही। नैनी सेंट्रल में रहे? हाँ फिर हम जीवन कारा बोल गया, फिर हाई कोर्ट अपील की ना, बाप रहा हमार, फिर हम छूट गए 6 महीना में, फिर 11 तारीख, फिर तारीख 2 मार गए, जब 2 मार गए फिर अपन लड़ते रहे, फिर जा नहीं पाओ वारंट काट गया। फिर एक बार जो थाने पर आई कि साहब आवाज सामने बता दिया, अरे कहा 2 मार के कुछ न हुई,
तो साहिब ढिला रखे मेरे पैसा रखे औरत में फिर 9 सेंटर में रही कुल कितना साल भीगवा? कुल आपका समझ लीजिए होगा 38 साल होगा। जेल में रहत रहत हाँ 48 साल होगा। 48 साल वो पूरा जेल में काट दे। हाँ 48 साल की जेल पार दिए। Moving on to another case of justice being denied, and this time in Bihar. Republic gets you a report from Bihar of a story that should put every politician to shame, especially in Bihar, which goes to elections soon. A minor Dalit raped and then brutally attacked with a knife in Muzaffarpur. She has now succumbed to her injuries. Her family claims she faced nearly a 6-hour delay right outside the hospital, outside the gates of the hospital, inside an ambulance. She kept waiting. She didn't get treatment. She succumbed. She was just 10 years old. 10-year-old victim raped, stabbed at the hospital gates, waited for 6 hours. No help. She died. This is her story. On May 26th, a 10-year-old girl was allegedly raped and assaulted in the Kanti area of Bihar's Muzaffarpur. Police say she sustained multiple stab wounds and deep injuries to the neck, chest and abdomen. She was found and later admitted to the hospital. After 5 days of treatment, she was referred to Patna Medical College and Hospital on May 31st. She was transported in a life support ambulance. Her family alleges that she was kept waiting in the ambulance for several hours before admission. वहाँ जाकर भी जैसे 4 घंटा उसको गाड़िए में लगाए, हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए कहा गया तो कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं ले रहा था। बाद में वो क्या बोलते हैं हॉस्पिटल का नाम हमको उतना अथी नहीं है, हाँ पटना मेडिकल कॉलेज, उसी में वो परसौती वाला होता है, उसी में हमको बच्चा को एडमिट कर दिया गया और इलाज ढंग से उस बच्चा का नहीं किया गया। The girl died on June 1st during treatment. Following reports of delay and negligence, the National Commission for Women took suo motu cognizance of the case. NCW chairperson Vijaya Rahatkar issued a statement condemning what she termed as gross negligence and systematic failure. She directed the Bihar Chief Secretary and DGP to ensure a detailed investigation and submit an action taken report within 3 days. Meanwhile, Republic also spoke exclusively to the superintendent of the Patna Medical College and Hospital, who admitted that the girl was brought to the hospital in a critical condition. नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो मैसिव इंजरी था, चेस्ट इंजरी था, गला पर भी था, प्राइवेट पार्ट में भी इंजरी था, तो काफ़ी था, ट्रैकिया वगैरह वगैरह सब कट चुका था और वहाँ पर से टी पीस पर रख करके भेजा गया। तो उसी के 5 दिन वहाँ रख दिया गया। तो 5 दिन में जो है सो मे बी कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैसिव इंजरी पहले से होगा और 5 दिन कहीं पर रख लिया जाएगा तो उसके बाद क्या हालत होगा। तो यहाँ जो आई थी सीरियस कंडीशन में आई थी। कहने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जो यहाँ डॉक्टर है, जितने डिपार्टमेंट के डॉक्टर है, सब डिपार्टमेंट ने जाके क्या और क्रिटिकल कंडीशन में आया है तो कोई क्या कर सकता है। Meanwhile, the accused has been arrested. Charges have been filed under the IPC and the POCSO Act. Our next story coming in from different cities across India started with Mumbai. Fungal growth observed on certain food articles. Storage of products near clogged and stagnant water. Cold storage temperatures not maintained as per regulatory standards. Wet, filthy floors with food items stored in a disorganized and unsanitary manner, including directly on the floor, and expired food products found not clearly separated from non-expired stock. Now, this could be the reality in many quick commerce 10-minute delivery apps. Their go-downs, as they come under scanner in almost every metro. Republic reported from some of these go-downs that are being raided. Here's an exclusive report. Quick commerce aggregators of India are under fire. What's supposed to be quick, clean and convenient is now triggering serious health concerns. It all started with food inspectors visiting a Dharavi warehouse.
And what they found there was nothing less than disgusting, shocking, and outrageous. Fungus on food. You heard that right. Products meant for doorstep delivery rotting with visible contamination. The floors soaked, filthy, slippery, a breeding ground for disease. Storage, a complete mess. Food items dumped without any organization, fresh, frozen, expired, all jumbled together. Unhygienic packaging, damaged seals, and expired goods, some still carrying clearly visible expiry dates. Shockingly, the food was found placed directly on wet, grimy floors without any protective layering, some next to clogged drains. No segregation, no safety protocols, and a blatant violation of health codes and customer trust. मैं अंदर हूँ मौजूद और तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि एफडीए ने कल यहाँ पर रेड किया था और जहाँ यहाँ पर जो सामान है कहीं न कहीं जो फूड सेफ्टी का गाइडलाइन होता है उसको पालन नहीं किया गया। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से अंदर यहाँ पे रखे हुए सामान और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो नियम है उसका पालन नहीं किया गया, जिसके बाद एफडीए ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। In fact, FDA Commissioner of Maharashtra Rajesh Narvekar also suspended the license of the warehouse and said that it will be revoked only if all conditions are met. Actually, as per the Act, they will be given the improvement notice. So they have to fulfill all the parameters as mentioned in the improvement notice. And once they come back with their improvement notice, then we will re-verify all the parameters whether they have fulfilled or not. But it isn't just in Dharvi. Other parts of the country too have turned witness to this horror. अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप यहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं, यहाँ पे मैनेजर कौन है यहाँ पे इस वेयर हाउस के? मैनेजर अभी आए नहीं है और यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस वेयर हाउस के अंदर हम आए हैं, अगर यहाँ पर देखें आप, ये जो पूरा एरिया है इसके अंदर कितना गंद फैला हुआ है, चीज़ें सड़ रही हैं, फंगस लगे हुए हैं। ज़रा इस तरफ दिखाएं, ज़रा मैं अपने विजय सुरेंद्र शाह से रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ इस तरफ दिखाएं। ये पूरा वेयर हाउस में जो है बहुत ज़्यादा गंदगी है यहाँ पर, इस और बाएँ की तरफ भी दिखाएं। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर कौन अभी टीम लीड कौन है आपका इस वक्त यहाँ पर? बुलाइए राणा सर को यहाँ पर बुलाइए इस वक्त। हाँ, यहाँ पे इतने सारे लोग काम करते हैं, इतने सारे स्टाफ हैं यहाँ पर, मैनेजमेंट कौन देखता है यहाँ पे? इतनी सारी गंदगी फैली हुई है, कौन है? ज़रा बुलाइए उनको, ज़रा कौन है आपके राणा साहब? अच्छा राणा जी मुझे बताइए कहाँ है राणा जी? अच्छा ये फंगस है यहाँ पे, देखिए आप, ये किस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पे? सर ये अभी साफ़ हो रहा है। अभी कब साफ़ होगा? अभी अंकल आ रखे हैं, वो साफ़ करेंगे। सच बताइए, क्या आपको लगता है ये एक दिन का कचरा है? ज़रा नहीं सर, एक दिन का तो नहीं है, बट ये अभी हो रहा है, सफाई हो रहा है। अभी गत्ते साफ होंगे ना। 10 दिन से ज़्यादा का डंप किया हुआ कचरा है। महक नहीं आ रही आपको? बदबू नहीं लग रही है साहब? सर लग रही है, बट अभी सफाई होने वाली है। स्टोर के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक कंप्लेन जो है वो लगातार सीनियर अथॉरिटीज़ के साथ रेज की है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है और जो सफाई का काम है, जो फंगस रिमूवल का काम है, वो इस तरीके से यहाँ पर नहीं हो पाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे जो विजुअल्स हैं यहाँ पर वेयर हाउस के, उसके इसके अंदर जो गंदगी है वो असल तस्वीर जो है वो रिपब्लिक के कैमरे पे बयान करती है। After hygiene violations were found, we are right now here because as we can clearly see how the quick commerce delivery providers are now violating the hygiene norms, and therefore it's very important to tell our consumers and the customers as well who are ordering from the quick customer providers that how the warehouses are kept. Wherever so many places you could see the stagnant water, the water stagnancy could be seen, the dirtiness of the place could clearly be seen, and whether the hygiene is being followed or That's it on this edition of This Is Exclusive. Trending coming up next, following with the debate with Arnab Goswami starting 8 p.m. 3-week debates lined up for you tonight. Thanks for watching.